اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ سے ایک نور نکلا اور افق روشن ہو گئے۔ کعبہ کے ارد گرد موجود بت کانپ اٹھے اور گر پڑے۔ دور دراز علاقوں میں فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سب سے بابرکت زندگی کے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ نور جو دلوں کو اعلیٰ کی طرف واپس رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ لیکن ان کی کہانی نہ تو وحی سے شروع ہوتی ہے، نہ نبوت سے، اور نہ ہی قرآن کے پہلے الفاظ سے۔ یہ پیدائش سے پہلے کی رحمت سے شروع ہوتی ہے۔ مکہ کی خاموش وادیوں میں قدیم پہاڑوں کی نگرانی میں اعلیٰ ایک معجزہ تیار کر رہا تھا۔ ایک بچہ جو وقت سے پہلے چن لیا گیا تھا، ایک دل جو دھڑکنے سے پہلے ہی محفوظ کر دیا گیا تھا۔ ایک روشنی ایک پاک روح سے دوسری روح تک لے جاتی ہے۔ یہ محض پیدائش نہیں تھی، یہ ایک وعدے کا انکشاف تھا۔ ایک وعدہ کہ رحمت دنیا میں لوٹ آئے گی۔ تو میرے ساتھ چلو، آئیے اس رات کی طرف لوٹ آئیں۔ وہ رات جب دنیا بغیر فوجوں کے، بغیر بدل کے، بغیر شور کے بدل گئی۔ صرف ہلکا، نرم، پاک اور الہی۔ مقدس شہر مکہ میں آسمان کو چھونے والے پہاڑوں کے درمیان اعلیٰ کا فرمان کامل ہم آہنگی کے ساتھ نازل ہو رہا تھا۔ وہ کہانی جو زمزم اور قربانی کے عہد سے شروع ہوئی تھی، روشنی کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک ایسی روشنی جو جلد ہی دنیا کو منور کر دے گی۔ عبداللہ بن عبدول، جو نسب میں معزز اور دل میں پاکیزہ تھے، کو منتخب کیا گیا کہ وہ آویک اسپیسس پہ اور لیکسن سر کوٹ وہب سے نکاح کرے، جو عزت اور پاکیزگی والی خاتون تھی۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو نبوت کی روشنی ان میں چمک اٹھی، اور جب وہ اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ روشنی اس کے رحم میں منتقل ہو گئی۔ ایک ایسی روشنی جو جلد ہی انسانیت کے لیے رحمت لے کر آئے گی۔ کچھ ہی عرصے بعد عبداللہ تجارت کے لیے شام کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی پر وہ یثرب کے شہر میں بیمار ہو گئے، جو بعد میں المدینہ کہلایا، اور وہیں ان کی روح اپنے رب کے پاس لوٹ گئی۔ بیوہ رہ گئیں۔ ان کے رحم میں وہ سب سے معزز بچہ تھا جسے کبھی تخلیق جان سکے گی۔ وہ اکثر محسوس کرتی کہ وہ روشنی ان کے اندر حرکت کر رہی ہے، اور ایک چمک کا خواب دیکھتی جو شام کے شہر بصر کے محلات تک پہنچ گئی۔ اپنے خواب میں ایک آواز نے کہا، تم اس امت کے سردار کو اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ ربیع الاول کی 12ویں رات تھی۔ مکہ کے اوپر آسمان پرسکون تھے، ستارے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ میں وہ لمحہ آتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ درد نہیں تھا جو دوسری عورتوں کو ہوتا ہے، بلکہ ایک سکون، ایک ٹھہراؤ تھا۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب وہ اس دنیا میں آئے تو ان سے ایک نور نکلا اور افق روشن ہو گئے۔ کعبہ کے ارد گرد کے بت کانپ اٹھے اور گر پڑے۔ دور دراز سرزمینوں میں فارس کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی۔ ان کی والدہ نے ان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا دیکھا اور ان کی آواز سنی تو اللہ تم پر رحم کرے۔ تمام جہانوں کے رب نے تمہیں انسانیت کے رہنما سے نوازا ہے۔ جب ان کے دادا عبدول کو یہ خبر ملی تو وہ فوراً ان کے گھر پہنچے۔
खुशी से उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया और शुक्रगुजारी के तौर पर उसे आसमान की तरफ उठाकर काबा में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, मैं इसका नाम मुहम्मद रखता हूं ताकि वो आसमानों और जमीन में सराहे जाए। मैं चंद दिन तक उन्हें दूध पिलाया, फिर एक दाया की तलाश की। बैनू के कबीलों में से कुछ लोग मैका आए थे ताकि वो बच्चों को सहरा की हुआ में पाल सकें। इनमें आपोज ओयू हलीमा ऐसे डीए के भी थीं जिनका खानदान तहत और भूख का शिकार था। उनका गधा कमजोर था, उनकी ऊंटनी दूध नहीं देती थी और उनका अपना बच्चा प्यास से रोता था। हर दूसरी मां को दूध पिलाने के लिए बच्चा मिल गया सिवाय इनके। किसी ने भी यतीम को लेने की ख्वाहिश न की तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, किस्म है आला की, मैं वो यतीम लड़का ले लूंगी, शायद आला हमें बरकत दे दे। जिस लम्हे उन्होंने इसे गोद में लिया, उन पर बरकतें बरसने लगें। उनके सीने में दूध की फरावानी हो गई। उनकी ऊंटनी ने भी खूब दूध दिया और उनके रास्ते की हुआ भी नर्म महसूस होने लगी। वो कमजोर गधा जो पीछे रह जाता था, अब काफले के दूसरे जानवरों से आगे निकल गया। उनके शौहर ने उनकी तरफ देखकर कहा, इस बच्चे ने तो हमें बड़ी बरकत दी है। बन्नू साद की वादी में वापस आकर बरकत में और इजाफा हुआ। रेवर बढ़ गए, जमीन फिर से सरसब्ज हो गई और बच्चे के अर्द गिर्द हर दिल को सुकून मिल गया। वो मजबूत और खूबसूरत होकर बढ़ा और जहां भी रेंगता ऐसा लगता रोशनी उसके पीछे पीछे चलती है। एक दिन जब वो अपने रजाई भाई के साथ खेमों के पीछे खेल रहा था, दो सफेद लिबास वाले आदमी नमूदार हुए। उन्होंने इसे नरमी से लिटा दिया, इसका सीना खोला और एक छोटा सा सिया लोथड़ा निकाला और कहा, यह तुम्हारे अंदर शैतान का हिस्सा था। फिर उन्होंने दिल को जमजम के पानी से धोया। जब फरिश्तों ने इसका दिल पाक किया तो आला के अल्फाज बाद में इस्लाम मीम है तहारत की गूंज बन गए। पैदा इफ्लेह में आया व तेदा ख्याबे में डसे आया। यकीनन वो शख्स कामयाब हुआ जिसने अपने नफस को पाक किया और वो नाकाम हुआ जिसने इसे बिगाड़ दिया। सूरत अश-शम्स। जब बच्चे रोते हुए हलीमा के पास दौड़े और कहा, मुहम्मद को कत्ल कर दिया गया है, वो खौफ के मारे दौड़ती हुई बाहर आए और उसे जर्द चेहरे के साथ मगर सही सलामत पाए। उन्होंने इसे सीने से लगा लिया, आंखों में आंसू थे और कहा, मेरे बेटे क्या हुआ? उसने आहिस्ता से जवाब दिया, दो आदमी मेरे पास आए, मेरा सीना खोला और मेरा दिल पाक किया। वो और उनके शौहर जानते थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। इन्हें मक्का ने avec ici supérieur extensor quote quote भेज दिया गया। बेटे का इस्तकबाल किया और कुछ अरसा सुकून रहा। 6 साल की उम्र में वालिदा यसरब ले गई। वापसी पर अब वाक में बीमार हो गई। उन्होंने नरमी से अपने बच्चे को सीने से लगाया और सरगोशी की, हर जानदार को मौत का जायका चखना है, लेकिन आला तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और वहीं उनका इंतकाल हो गया। अपने बेटे को अपनी खादमा ऐमन की देखभाल में छोड़ गई, अकेला, मगर फिर भी अकेला नहीं था, क्योंकि आला उसके साथ था, अपनी हिफाजत में इसे संभाले हुए था। कोई जान ऐसी नहीं जिस पर एक निगहबान मुकर्रर न हो जो उसकी निगरानी करता हो। इसके दादा अब्दुल यतीम बच्चे को देखकर रो पड़े और कहा, वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। वो लड़के को अपने साथ इज्जत वाले फर्श पर काबा के करीब बिठाते थे और जब दूसरे लोग उसे हटाने की कोशिश करते तो वो कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसकी अपनी अजमत है। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो उनके दादा भी अपने रब के पास लौट गए। मोहब्बत और एतमाद के साथ उन्हें अपने चचा ओयूल की सरपरस्ती में दे दिया गया। वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी उनकी हिफाजत की,
ओयूब में उन्हें अपने बेटे की तरह पाला। वो दोनों शाम का सफर भी साथ करते थे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बच्चे ही थे। इस सफर में बसरा के करीब एक ईसाई राहिब बहीरा ने इस नौजवान के चेहरे में कुछ निशानियां देखें। उसने उन्हें खाने की दावत दी और उनके कंधों के दरमियान नबुव्वत की मेहर को देखा। फिर इसने ओयूब की तरफ रुख करके खबरदार किया, इस लड़के को यहूदियों से बचाओ क्योंकि ये दुनिया वालों के लिए भेजा गया नबी होगा। साल गुजरते गए, वो लड़का जवानी को पहुंचा, मजबूत, पाकीज़ा और गौर व फिक्र करने वाला। उसने कभी बुतों को सजदा न किया, कभी गुनाह के खेलों में शामिल न हुआ, कभी झूठ न बोला। इसकी कौम में उसे अल-अमीन यानी अमानतदार कहना शुरू कर दिया। इसमें सबसे आला सिफात जमा थीं, रहमत, इनकिसारी और सच्चाई, जो उसे आने वाली वही के लिए तैयार कर रही थीं। यूं आला की रहमत इस पर पहले ही लिखी जा चुकी थी। और हमने आपको नहीं भेजा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। कल मेरे साथ शामिल हों जब हम अगला बाब शुरू करेंगे, नबूवत का सफर, सच्चाई और अमानत के साल और वही की पहली निशानियां जो हमेशा के लिए दुनिया को बदल देंगी।